Okay, good morning everyone. Voice clear है? Yes, good morning. Good morning. So basically we were discussing the one-dimensional diatomic lattice, right? And we have got our omega versus k graph. ठीक है ना, हमें जो डिस्पर्जन रिलेशन मिला था उसके करस्पॉन्डिंग हमें ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया था. मैं एक बार फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना. Basically what the four values which we got, one was omega plus maximum, okay, one was omega plus minimum, right, other was omega minus maximum, and the other one was omega minus minimum, right. What were those values? What were the value of omega plus max? यही था, राइट. ओमेगा प्लस मिनिमम ये कितना था? Alright, and this was at k equal to 0. This was at k is equals to plus minus pi by 2a. This was k is equals to plus minus pi by 2a, and this was at k is equals to 0. These four value basically we have got. Now मैं एक बार फिर से प्लॉट कर रहा हूँ क्योंकि उसको प्लॉट किए बिना इसका डिस्कशन करना मुश्किल होगा. That's why I'm plotting the graph once again. It is omega versus k. All right. This axis was omega and this was k axis, right? These points were, this point was what? Omega minus minimum. All right. And this upper point was omega plus maximum. ये दोनों वैल्यू हमें k equal to 0 पर मिली थी, right? And there was, let's mention the Brillouin zone boundary, that is pi by 2a, and here it will be minus of pi by 2a. Omega plus max, and here it was omega plus minimum, right? Here omega minimum, omega minus minimum, that means here it will be something omega minus maximum. All right. And आप लोगों ने प्लॉट कर रखा होगा, प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका डिस्कशन करना है. दैट्स वाई इसका प्लॉट करना मतलब ज़रूरी हो जाता है ना. ठीक है, टेढ़ा बन गया है क्या? चलो ठीक है, आप लोग समझ लेना, ठीक है. एंड देयर वाज अ लाइन minus pi by 2a and other was at plus pi by 2. Okay. Obviously we got something, this type of structure of our graph. है ना. और ये जो आया था
it was something like that. Okay, and this region was our, I told you that ये region कौन सा था? This region was forbidden region, right? This region was forbidden region. Now, अब इसकी कुछ स्टडी करते हैं, इस ग्राफ की स्टडी करते हैं. Right? As I told you, this upper branch is known as optical branch. This upper branch is known as optical branch. All right, this branch, and this lower branch is known as what? Acoustic branch. Acoustic branch. And this region was our forbidden region or forbidden gap, you can write. Forbidden gap. Right? चलो इसकी स्टडी थोड़ी सी करते हैं, है ना? Let's first talk about the optical branch. What is basically the optical branches are? इनकी वैल्यूज मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ पहले. Omega plus max, this value was 2 beta, 1 small m plus 1 by capital M in under root. This value was root of 2 beta by small m. This point was under root 2 beta by capital M. Obviously this is 0. ठीक है? Now let's see what about the optical branch. ये optical branch क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं. The first is ऑप्टिकल ब्रांच. अभी मैं रेंजेस के बारे में बता रहा हूँ और अभी देखेंगे, आज की क्लास में देखेंगे कि बेसिकली व्हाई इट इज नेम्ड एज ऑप्टिकल ब्रांच एंड व्हाई इट इज नेम्ड एज एकॉस्टिक ब्रांच. सी फर्स्ट देखो, हम लोग बेसिकली इसकी स्टडी कुछ इस तरह से करने जा रहे हैं. बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम वेयर क्वेश्चन कैन बी पुट अप. एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ सर किस तरह से आ सकते हैं, उसको थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए हम इसकी स्टडी करेंगे, राइट? सो इफ यू टॉक अबाउट द ऑप्टिकल ब्रांच, व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच? मींस फ्रीक्वेंसी रेंज. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच? Yes, right. The frequency range is under root 2 beta by small m and root under 2 beta by 1 over small m by 1 over capital M. यही होगा इसके फ्रीक्वेंसी रेंज. ठीक है, देखो आप लोग ना इसको लिखते हुए चलना, ठीक है ना, इसको आप लोग लिखते हुए चलना, ठीक है. दिस इज अवर बेसिकली फ्रीक्वेंसी रेंज, है ना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट what basically happens in optical branch and why it is named as optical branch. ठीक है, देखो होता क्या है, जो बेसिक चीज है ऑप्टिकल ब्रांच में वो ये है कि इनके जो एटम्स होते हैं, the atoms in the optical region, that is optical branch, it oscillate, it displaced in opposite direction. ठीक है ना, ये इनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है इस रेंज में, जो भी एटम्स होंगे उनका जो ऑसिलेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन मींस इफ आई टॉक अबाउट, लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द इक्विलिब्रियम पोजीशन. पहले हम एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसको शो करेंगे and then we will see that what is basically happen in the optical branch. Okay, so if you talk about, see, this will be the equilibrium position. This is a smaller atom, this is a bigger one, this is again a smaller atom, this is a bigger one, a smaller atom, this is a bigger one, and so on. ठीक है ना,
एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था ये किससे अटैच्ड होंगे, एक स्प्रिंग से अटैच्ड होंगे ना, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। एंड दिस पोजीशन इज आवर इक्विलिब्रियम स्टेट और इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब अभी हमने कुछ भी बाहर से कोई भी फोर्स या कोई भी वेव इंसर्ट नहीं किया है ना, कुछ भी अभी इसको डिस्प्लेस नहीं किया बिल्कुल भी। सो नाउ व्हाट हैपेंस, देयर नेवर एटम डिस्प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। जब हम देखो ऑप्टिकल ब्रांच में एक हम सर्टेन टाइप ऑफ वेव या रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं, जिसकी वजह से हमें इस रेंज की फ्रीक्वेंसी मिलती है। मैं उस पर भी आऊंगा, बट अभी फर्स्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट व्हाट बेसिकली हैपेंस इन द ऑप्टिकल ब्रांच, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पोजीशन एज द वेव और रेडिएशन इंसिडेंट। अभी वेव की भी बात करेंगे, कौन सी वेव होती है, द इंसिडेंट और वेव इंसिडेंट इन द क्रिस्टल। नाउ बेसिकली सी व्हाट हैपेंस, इसलिए लिख लिया सबने, फ्रीक्वेंसी रेंज लिख लिया। नाउ इन ऑप्टिकल ब्रांच इज कुछ ऐसे होता है, ये मैं इसको ना थोड़ा सा सही से बनाता हूँ। ठीक है, और फर्स्ट आई एम ड्राइंग अ डमी, देन आई विल शो यू द थिंग्स। ओके, मैं कुछ पहले इसको यहाँ से हटा दूँ। राइट, ये थोड़ा सा गलत बन गया है, एक मिनट, मिड से जाना चाहिए था ना। ठीक है, देखो मैं ये इंटेंशनली इसका जो गैप है ना ये कम रख रहा हूँ, और जो इसका गैप है ये ज्यादा रख रहा हूँ। ठीक है ना, राइट। ओके, नहीं ये और एटम्स ऊपर से नीचे आएगा ना तो ये गैप भी कम ही रहेगा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखो ये कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे जाएगा, एंड ऑब्वियसली ये वाला जो पोर्शन है इसको आप थोड़ा सा बड़ा बनाना। राइट, नाउ सी व्हाट हैपेंस। देखो I am considering this small means this solid dot atom as our small m atom, that is smaller one, and this round shape atom is our capital M, and we have taken the assumption that capital M is greater than small m। ठीक है ना, देखो होगा क्या, लेट सपोज हमने यहां से शुरू किया, ये कोई एक स्मॉलर मास का एटम रखा हुआ था, एंड दिस इज प्रेजेंट हियर। ऑलराइट, दिस विल प्रेजेंट हियर। नाउ एज द वेव प्रोपगेट्स, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो हैवियर एटम होगा ना ये लेट सपोज यहाँ आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो ये छोटा वाला है वो यहाँ आएगा। ठीक है, सिमिलरली द बिगर वन विल कम एट दिस पॉइंट, द स्मॉलर वन विल कम एट दिस पॉइंट, द बिगर वन विल बी एट दिस पॉइंट, smaller one at this, basically they will displace in opposite phase, you can say out of phase जाके डिस्प्लेस करेंगे। एक एटम जो हैवियर मास का एटम है वो अलग डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा, और जो लाइटर मास का एटम है वो अलग डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा। ठीक है ना, और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट ले सपोज ये वापस यहाँ पर आ गया। ठीक है, नाउ फिर से एक साइकिल स्टार्ट होगी, it will displace in this direction, this will displace in this direction, this in this, this in this, 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 and you can see here। ठीक है ना, ये कुछ ऐसा डिस्प्लेसमेंट इनका होगा,
ऑप्टिकल ब्रांच में the two atoms, that is a heavier atom and the smaller atom, will displace out of phase, एक दूसरे से opposite direction में ये travel करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, what was the amplitude of this heavier atom? heavier atom से जो amplitude था ना वो कितना हमने assume किया था? That was B, I guess. B कोई छोटा माना था ना amplitude? हाँ, and this amplitude was capital A, ठीक है। and similarly this amplitude will be capital A and this amplitude will be capital B, ठीक है ना। obviously जिसका mass कम होगा, the atom which has lighter mass, they will have more amplitude, okay। that is A, the amplitude of A is greater than B because कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m, ठीक है ना। ये प्लॉट आपको समझ में आया है? ऑलराइट, सो नाउ सी, अब बात करते हैं कि ऑप्टिकल नाम कहां से आया है, फ्रॉम वेयर दिस ऑप्टिकल नेम केम फ्रॉम। बेसिकली व्हाट हैपेंस हियर, वी इंसिडेंट अ रेडिएशन, when we incident a radiation, optical radiation in a crystal. Optical radiation means what? You can say infrared radiation, ठीक है ना, जिसकी एक पर्टिकुलर कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, and that frequency is 430 terahertz to 300 gigahertz. 430 terahertz to 300 gigahertz. And basically this frequency lies for IR region, ठीक है ना। थोड़ा पोर्शन इसका EM रेड मतलब अल्ट्रावायलेट में भी चला जाता है, विजुअल में भी चला जाता है, तो वो तीनों ही इसके जो है ना कैंडिडेट होते हैं। दे ऑल थ्री आर द कैंडिडेट ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी रीजन, ठीक है ना। तो कोई IR का कोई कॉपीराइट नहीं है कि IR ही आएगा, कभी कभी विजुअल लाइट और EM रेडिएशन भी आ जाते हैं, ठीक है ना। दैट्स व्हाई द ऑप्टिकल रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन अ क्रिस्टल, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एट द ऑप्टिकल ब्रांच। ये हो इसकी नाम की बात, किसका नाम कहां से आता है, और ये होगा इसके काम की बात कि आखिर ये काम क्या करता है इसमें। सो द बेसिक वर्क इज द एटम, बोथ द एटम विल डिस्प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, और यू कैन से दे विल डिस्प्लेस आउट ऑफ फेज, दे विल डिस्प्लेस आउट ऑफ फेज, ठीक है ना। वेव की कैटेगरी आप लोगों ने पढ़ा होगा EM वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, ये बिल्कुल वैसा ही है कुछ। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर एम्पलीट्यूड। लेट्स टॉक अबाउट देयर एम्पलीट्यूड। सी, कैन आई राइट लाइक दैट कैपिटल A is inversely proportional to, can I write here? See, can I write like this? Capital A is inversely proportional to small m, and obviously the capital B is inversely proportional to what? Capital M. देखो, as the mass means smaller atom mass, as the mass will goes on इंक्रीजिंग, भाई लेट सपोज कोई एटम है जिसका मास 2 ग्राम है, हाइपोथेटिकली द 2 ग्राम, ठीक है ना, उसका एम्पलीट्यूड A है। जैसे ही आपने उसको 2 से क्या किया, बढ़ाना शुरू किया, एज यू स्टार्टेड टू इंक्रीज द मास फ्रॉम 2 टू हायर 1, 2 से जैसे आपने 4 किया, मास बढ़ गया, और जैसे ही मास बढ़ गया एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली कम हो जाना है। भारी चीज, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, भारी चीज कम डिस्प्लेस करेगी, कम मोमेंटम के साथ आगे जाएगी, ठीक है। दैट मींस A is inversely proportional to small m. Similarly, the B is inversely proportional to capital M. Capital M is obviously, भाई मास भारी है, capital M is greater than small m. जैसे जैसे ही आप इसके मास को और बढ़ाओगे, लेट्स सपोज दिस इज 100 ग्राम, आपने उसको 110 कर दिया, ऑब्वियसली द एम्पलीट्यूड इज नैरो, एम्पलीट्यूड और छोटा हो जाएगा। That means B is inversely proportional to capital M. So can we write like this? A upon B
it should be equal to capital M upon small m, but there will be a negative sign. ये नेगेटिव साइन कैसे आता है, कोई बताएगा? Why the negative sign is coming here? Yes, exactly. The amplitude are in opposite direction. Out of phase बताया ना? That's why this negative sign comes out. ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है. मैं देखो स्टार करता जाऊंगा, जो जो भी इंपॉर्टेंट होगा ना मैं उसको स्टार कर दूंगा. The frequency range you have written, make the star. Frequency range में भी क्वेश्चन आ सकता है. Then what is the frequency range of optical branch? That's it. क्वेश्चन बन गया. इसको भी आप स्टार मार्क कर लो. A capital A upon capital B is minus capital M upon small m, where m is greater than small m. इसको भी लिख लेना, ठीक है ना? कैपिटल M is greater than small m. All right, ठीक है? Now let's talk about, ये हो गई ऑप्टिकल ब्रांच की बात, ठीक है ना? These are the thing for the optical branch. Now let's talk about first the acoustic branch. Yes, frequency range ये था 430 टेराहर्ट्ज to 300 गीगाहर्ट्ज. नहीं, एमिट आईआर इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज की होती है इंफ्रारेड रे. जब हम इस रेडिएशन को क्रिस्टल पे इंसिडेंट कराते हैं तो वो जो फ्रीक्वेंसी रेंज में क्रिस्टल में जनरेट होता है वो ये रेंज ऑप्टिकल ब्रांच की होती है, ठीक है? ये है. एंड द ओके, सो दिस वाज फॉर द ऑप्टिकल ब्रांच. देखो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आएंगे धीरे धीरे आएंगे सब पे, ठीक है ना? लेट्स टॉक अबाउट द acoustic ब्रांच फर्स्ट, देन वी विल गो टू द फॉरबिडन गैप. तीन रीजन है ना बेसिकली वी हैव थ्री रीजन हियर. फर्स्ट इज ऑप्टिकल, फॉरबिडन, acoustic. एक एक करके तीनों की स्टडी करते हैं. सो वी हैव स्टडीड द ऑप्टिकल ब्रांच. इसमें हमने क्या क्या देखा? द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑप्टिकल ब्रांच, basically how the displacement of atom occur in a optical branch, and what is the relation of their amplitude in a optical branch. ठीक है ना? These three things we have seen here, and obviously क्यों इसका नाम ऑप्टिकल ब्रांच पड़ा है, why the name is optical branch, we have also seen that. Clear? Now let's talk about the acoustic branch. रब कर दो इसको, can you rub it? All right. Okay. So now मैं एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि acoustic ब्रांच में क्या होगा. बेसिकली acoustic ब्रांच में क्या होता है कि ये जो आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो ना, दोनों एटम का आउट ऑफ फेज, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है. इन द acoustic branch both the atom will go in phase. In phase means the displacement of both the atom will follow the same path. ये होता है acoustic ब्रांच में पिक्टोरियली, पिक्चर वाइज कैसे होते हैं मैं बता देता हूं, अभी लिखा भी दूंगा. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज? फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी रेंज इज, चलो मैं स्टार्ट ही कर देता हूं. पुट द हेड, डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, मतलब डायरेक्शन सेम होता है. किसमें? acoustic में? आ रहा हूं पिक्टोरियल दिखा रहा हूं मैं आपको, डोंट वरी. Now the second is acoustic branch. Acoustic branch, just write down displacement of atom is in same direction. Just write down one line, displacement of atoms is in same direction. Displacement of atom is in same direction, or you can say two atoms are in phase.
Now, just write the first frequency range of this acoustic branch. What is the frequency range? The frequency range is 0 to अंडर रूट 2 बीटा बाई कैपिटल एम, यही होगा. So frequency range is 0 to omega root under 2 beta by capital M, and I am marking this as star. ये आपकी कॉपी में जरूर होना चाहिए और आपके दिमाग में भी जरूर होना चाहिए. ठीक है, right? Now, first I am drawing the equilibrium position of the atoms as I did in last article. Okay, let's suppose this is our smaller atom. This is our capital means bigger atom. This is smaller, this is bigger, this is smaller, this is bigger, and this is smaller, and so on. ठीक है, obviously they will attach with a spring. And this is our equilibrium position. ये तब है जब हमने कोई भी एकॉस्टिक वेव इंसिडेंट नहीं कर. अभी एकॉस्टिक वेव क्या होती है, पहले इसके बारे में ही बात कर लेते हैं. You guys have studied in the class 11th or 12th the concept of compression and rarefaction. ठीक है, क्या होता है उसमें? कंप्रेशन में क्या होता है, एटम्स आसपास आ जाते हैं, रेयरफैक्शन में फिर दूर हो जाते हैं, फिर पास आ जाते हैं, फिर दूर हो जाते हैं, फिर पास आ जाते हैं, फिर दूर हो जाते हैं. यही होता है. इस तरह से अगर कोई वेव जनरेट होती है, उसको वहां पर क्या लिखा था बुक में, किसी को याद है? दैट्स कॉल्ड द acoustical wave. Acoustical wave. And the acoustical wave is a sound wave, or you can say sound wave is the acoustical wave. ठीक है ना. और ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर acoustic जहां पर आया है, जहां पर भी acoustic का नाम आ गया, समझ जाना there is something related with a sound wave. तो जो ऑप्टिकल ब्रांच में हम EM रेडिएशन या IR रेडिएशन को इंसिडेंट करा रहे थे क्रिस्टल पर, इन द acoustic ब्रांच कौन सी वेव होगी? दैट विल बी द साउंड वेव. ओके, यहां पर वेव कौन सी होगी? द वेव विल बी साउंड वेव. एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव? कैन एनीवन टेल? द फ्रीक्वेंसी रेंज of sound wave is around 20 hertz to 20 kilohertz. Yes, it is 20 hertz to 20 kilohertz. ये इसकी रेंज होती है साउंड वेव में. ठीक है ना. और जब इस तरह की वेव, साउंड वेव को हम क्रिस्टल पर इंसिडेंट कराते हैं, देन वी गॉट द एकॉस्टिक ब्रांच. एकॉस्टिक ब्रांच मीन्स जब फ्रीक्वेंसी हमारी जनरेट होती है, वो इस रेंज की फ्रीक्वेंसी आती है. अच्छा, जनरली ऐसा देखा जाता है कि दिस टाइप मींस acoustic branch is generally obtained in monoatomic lattice. Generally, I'm not saying that diatomic में नहीं आ सकता, आता है, कभी कभी आता है, बट मोनोएटॉमिक में जनरली देखा जाता है that we got acoustic branch. किसी ने ध्यान दिया कि अगर इन दोनों पोर्शन को आप 2 मिनट के लिए हाइड कर लो, ऑप्टिकल को और फॉरबिडन को, ये हमने कहीं डिराइव किया था, याद है किसी को? इस तरह का ग्राफ आया था कहां पे? 1 डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस में आया था, है ना. यही तो आया था ना जब हमने ओमेगा वर्सेस के को प्लॉट किया था. ये बाउंड्री आके बिल्वन जोन को टच कर रही थी, याद है ना. तो बेसिकली ये देखा जाता है इन acoustic ब्रांच बेसिकली फाउंड इन मोनोएटॉमिक लैटिस. और अभी मैं एम्पलीट्यूड का एक रिलेशन यहाँ पे लिखूंगा, जैसे अभी मैंने लिखा था ना, द रिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड इन ऑप्टिकल ब्रांच, दैट वाज a अपॉन b एंड दिस वाज माइनस m अपॉन माइनस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m. You will see for the acoustic branch, this capital A upon capital B, that means the ratio of amplitude, this comes out A upon B is equals to capital M upon small m. ठीक है ना. ये सेम फेज में होते हैं, अपोजिट फेज में नहीं होते. सो ये है थोड़ी सी कहानी acoustic ब्रांच की. ठीक है ना. सो हमने क्या किया? हमने अभी तक डेफिनेशन लिखा,
we have written the frequency range, we have written the sound wave frequency range, and I have told you that why basically it is named as the acoustic, because compression और rarefaction ऐसी wave में होता है. ठीक है. Now जैसे कि हमने बात किया था, we have talked about for the optical branch that the displacement of atom will be in out of phase. Here in acoustical branch, as I told you, that the displacement of both the atom will in same direction, or you can say in same phase, and it will like, देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मैंने बना दिया है, और जब हमने इस पे कोई साउंड वेव को इंसिडेंट कराया क्रिस्टल पे, तो ये जो एकॉस्टिक ब्रांच है ये हमारी कुछ ऐसी आ गई. देखना, okay, and we will get something like this. And both the atom, let's suppose I'm mentioning here, this dotted atom is small m and this rounded atom is capital M, where capital M is greater than small m. Okay, and when it will start from here, देखो इसमें थोड़ा सा पिक्टोरियली थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो स्मॉल m वाला एटम है ना, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे आना चाहिए, ये यहां पर आना चाहिए. ठीक है ना. ऑब्वियसली हमें पता है कि द एटम व्हिच हैव स्मॉलर मास दे हैव द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब मींस ग्रेटर एम्पलीट्यूड. तो जो एम्पलीट्यूड जहां पर मैक्सिमम, हाँ नहीं नहीं नहीं, सेम है सेम है सेम है, कोई छोटा नहीं है. ठीक है ना, छोटा बड़ा नहीं है, सेम है. ये नॉर्मल वेव फ्रंट बना हुआ है, नॉर्मल वेव बना हुआ है जैसे हम बनाते हैं. ठीक है, कोई छोटा बड़ा बन गया हो तो वो इंटेंशनली नहीं बना है. ठीक है ना, वो ऑप्टिकल ब्रांच के लिए था, इसके लिए नहीं था. क्योंकि आप देखोगे ना, देखो हियर आई पुट द स्मॉल m एंड सिमिलरली हियर आई विल पुट द स्मॉल m. ठीक है ना, तो दोनों का एम्पलीट्यूड एक्चुअली सेम होगा. ठीक है ना, चलो मैं फिर से बना देता हूँ अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो. स्टूडेंट कुछ पूछते नहीं है कभी, और ठीक, चलो ठीक है, कोई नहीं, छोड़ देते हैं, देख लेना आप लोग. ठीक है. सो व्हाट आई टोल्ड, दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस वन स्मॉल m एंड दिस शुड बी द पॉइंट ऑफ स्मॉल m, क्योंकि हमें पता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा. सबसे ज्यादा मीन्स a और b के कंपैरिजन में इसका ज्यादा होगा. तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. दिस इज अवर, लेट्स सपोज स्मॉल m, it will comes out capital M, small m, capital M, small m, capital M. Okay, small m, capital M, small m, and similarly they will follow this path, capital M, small m, capital M, small m, capital M. Here is a small m, and similarly they will follow the same path. ये कुछ ऐसा आएगा, और आप देखोगे यहाँ पे, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ऑब्वियसली दिस इज ए, एंड अगेन दिस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज ए. इन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम. ठीक है ना. तो ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर, वेव का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आता है. ठीक है ना. कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में आप देखना एक बार, अगर आपके पास बुक हो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, दोनों ही एटम सेम डायरेक्शन में, यू कैन से इन फेज मूव करेंगे. ऑलराइट. नाउ if you talk about the amplitude relation with the masses, amplitude को अगर हम मास के साथ रिलेट करें, that the relation which we have found in the optical branch, similarly कुछ अलग तो हो नहीं रहा है ज्यादा यहाँ पे. कैपिटल A again will be inversely proportional to small m, right, and capital B will be inversely proportional to capital M. So can I write A upon B is equal to what? Capital M upon small m. Should we put the minus sign here? No, sir.
नो, बिकॉज दे आर इन द सेम फेज, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड दोनों ही एक सेम फेज में है। तो इन दोनों रिलेशन को आपको लर्न करना है या आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड एंड देयर मासेस फॉर द ऑप्टिकल ब्रांच एंड फॉर द एकॉस्टिक ब्रांच, ठीक है। फॉरवर्डिंग के लिए भी अभी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। सो दिस वाज द कंप्लीट थ्योरी ऑफ द एकॉस्टिक ब्रांच, ठीक है ना। अच्छा देखना, मैं एक चीज़ यहाँ पर जनरलाइज करता हूँ आपको, ठीक है ना, और ये जनरलाइजेशन कुछ ऐसे है कि मैं इसको पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको इसको डिस्कस करूँगा। ये हो गया सबका, और जो मैं लिखने जा रहा हूँ ना अभी, लास्ट 2 or 3, if you take the range of 5 years of other different exams, question from, जो भी मैं लिखूंगा, question from that part has been asked very frequently। कुछ नहीं करना है, बस एक छोटी सी चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। अभी अब मैं आपको प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, आप देखना उसमें। देखो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, दो ही तरह से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं अभी तक जो मुझे दिखा है। फर्स्ट इज ओमेगा वर्सेस के, दैट इज डिस्पर्जन रिलेशन, जिसमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में कुछ वैल्यू निकलवा सकता है ना। सिमिलरली दे कैन आस्क फॉर द ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन which has been made, and this is from this point. Just write down the heading, that is generalization. Generalization. मैं इसको जनरलाइज करके थोड़ा लिख देता हूं, आप इसको पहले लिख लो, फिर हम इसको डिस्कस कर देंगे। इफ देयर आर कैपिटल N एटम्स पर यूनिट प्रिमिटिव सेल, if there are capital N atoms per unit cell or primitive cell, then it will be, I am making a column here for the, means I am making a 3 column here for 1D, for 2D and for 3D। मैं यहाँ पर आपको 2D और 3D का भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना। इन नेक्स्ट क्लास, एक क्लास की बात और है, वी विल जनरलाइज द आवर डिस्कशन द 2 डायमेंशन 3। देखो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में कुछ भी अलग नहीं होने वाला है, जो हमने किया है ना उसी को एक्सटेंड कर देना है, जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसी को एक्सटेंड कर देना। इफ यू गाइस रिमेंबर, वी हैव सॉल्व वन क्वेश्चन फॉर द 3 डायमेंशन, याद है किसी को? cos kx, cos ky, cos z, cos kz किया था मोनोएटॉमिक में। बिल्कुल वैसे ही होता है, cos kx, ky, kz कहां से आया था? फॉर द 2D एंड 3D, बस उसी का वो एक्सटेंशन हो जाता है। देयर इज नथिंग मोर कॉन्सेप्चुअल इन द 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, ओके। सो बट यहां पर मैं इसको पूरा सा जनरलाइज करके लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग हियर विद द जनरलाइजेशन दैट व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इन 1 डायमेंशनल क्रिस्टल, इन 2 डायमेंशन क्रिस्टल एंड 3 डायमेंशन क्रिस्टल। तो ये जो कॉलम है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर आप बहुत ही प्रॉपर बनाना, इसको याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन यहां से आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। दिस इज फॉर द 1 डायमेंशन, this is for the 2 dimension, and this is for the 3 dimension. What we have taken, that there are capital N atoms per unit primitive cell. So in 1D there will be N modes, there will be N modes are possible। अभी बताता हूं, N modes are possible, that is what is means mode means N value of omega are possible, N value of omega are possible। ध्यान से देखते जाना, एक समझ जाओगे, दूसरा तीसरा, जैसा कि मैंने कहा 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन का एक्सटेंशन है, ठीक है। N modes are possible, N क्या है? N atoms। N modes are possible, that is N value of omega are possible, that is, इसी का मतलब होता है N degree of freedom are possible, N degree of freedom are possible। टोटल कितने मोड्स हैं? N मोड्स हैं, ठीक है। टोटल कितने मोड्स हैं? N मोड्स हैं। तो ये जो N मोड्स है ना, नंबर ऑफ N मोड्स विल बी डिवाइडेड इन
एकाउस्टिक मोड एंड ऑप्टिकल मोड। वो कैसे होंगे ये देखना। दिस n mode will divided as n minus 1 optical mode and 1 acoustic mode। देखो ध्यान से, if there are n atoms per unit primitive cell, for the one dimensional n modes are possible. Let's suppose there is one atom, then only one mode are possible. Mode means one degree of freedom are the possible and one value of omega are possible. तो जब एक एटम है और वन डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, देयर विल बी नो मोड इन ऑप्टिकल ब्रांच। ऑप्टिकल मोड नहीं होगा वहां पे, और ये हम देख चुके हैं कहां पर, मोनोएटॉमिक लैटिस में। ठीक है ना, मोनोएटॉमिक लैटिस में क्या था, पर यूनिट प्रिमिटिव सेल में एक एटम था और वहां पर हमें ऑप्टिकल ब्रांच मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। वहां पर कैसा था, सिर्फ और सिर्फ एकाउस्टिक ब्रांच था, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, n-1 ऑप्टिकल मोड एंड 1 एकाउस्टिक मोड। अब इन दोनों को सम करके देखो, n-1 प्लस 1, 1 1 कट जाएगा, n आ जाएगा। जो टोटल n नंबर ऑफ मोड्स हैं वो डिवाइड हो गए हैं n-1 ऑप्टिकल में और 1 एकाउस्टिक में। क्लियर है? हाँ नहीं, प्रिमिटिव एटम्स, नॉट टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है ना, प्रिमिटिव एटम्स। सिमिलरली वी कैन राइट इट डाउन फॉर द टू डायमेंशन। टू डायमेंशन अब आप ही लोग बताना मुझे, फॉर द टू डायमेंशन हाउ मेनी मोड्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी मोड्स आर पॉसिबल, 2n मोड्स। ठीक है ना, 2n मोड्स आर पॉसिबल। दैट मीन्स टोटल 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम आर पॉसिबल। Among this 2n mode, the some part will take by optical mode and some part will taken by acoustic mode, and that is divided as 2n minus 2 optical mode and 2 acoustic mode। आप इन दोनों को सम करो, 2n minus 2 और 2 को, you will get a 2n modes। ठीक है, similarly for the 3D, in the 3D crystal if there are n atoms then total will be 3n modes are possible, 3n modes are possible, and among the 3n modes optical कितने होंगे बताओ, optical कितने होंगे, how many optical modes, 3n minus 3, 3n minus 3 ऑप्टिकल, एंड अकाउस्टिक कितने होंगे, 3 अकाउस्टिक। इतनी इंफॉर्मेशन से पिछले 3 4 5 साल लगातार क्वेश्चन आया है, रेगुलर फ्रीक्वेंटली, सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट्स हैं। ये कॉन्सेप्ट आप, अच्छा आप लोगों का क्लासिकल मैकेनिक्स खत्म हुआ है? अभी नहीं हुआ है ना? ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ, देखो मैं उसमें नहीं जा रहा कि ट्रांसवर्स कितने होंगे, लॉन्गिट्यूडनल कितने होंगे, ठीक है ना, उसमें मैं नहीं जा रहा, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। बट मोड्स क्या होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लैटिस वाइब्रेशन, ये क्लियर हो चुका है, ये खत्म हो जाएगा आज, खत्म, क्लियर। बट मोड्स के अकॉर्डिंग, मोड्स के रिगार्डिंग अगर आप कुछ स्टडी करना चाहते हो ना, इफ यू गाइज टू स्टडी रिगार्डिंग द मोड्स, देन यू विल गेट a premier section of the normal modes। normal modes के नाम से in the classical mechanics, अतुल सर will take the class, normal modes के नाम से आप एक सेक्शन पढ़ोगे, वहां पर आप जान पाओगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आएगी। वहां पर भी स्प्रिंग मास सिस्टम होता है, ऑलराइट, जैसे कि इन द दिस केस लैटिस वाइब्रेशन वी हैव स्टडीड द स्प्रिंग मास सिस्टम। ओके, मोड्स आया है, देयर यू विल स्टडी द स्प्रिंग मास सिस्टम, और वहां से आपको मोड्स का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मोड्स का कॉन्सेप्ट मींस लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर, ये सब वहां से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, वो हमें उसमें नहीं जाना। अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट वी हैव टू मींस मेक इन द माइंड इज दीज 3 कॉलम। जितने स्टार बनाना है ना, बना लो इसके ऊपर, ठीक है ना। दीज 3 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम ऑफ दिस चैप्टर।
In a 1D, if there are n atom per unit primitive cell, n modes are possible. Among the n modes, n minus 1 will be optical, 1 will be acoustic. 2 dimension में 2n modes are possible, 2n minus 2 optical and 2 acoustic. इन दोनों का सम कर दोगे 2n आ जाएगा. Similarly, the 3n modes are possible in 3D, 3n minus 3 optical and 3 acoustic. क्लियर है? आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? आपको ये ध्यान रखना है. मैं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कराऊंगा. Whatever questions has been come in the last few years, we will solve each and every question in the class. All right? So this was some generalization. Although I know I didn't discuss the 2D and 3D yet, but here I have made this generalization to make understand you guys that this is the generalization for the 1D, 2D and 3D. And as I told that 2D and 3D is just an extension of 1D as you can see here. ठीक है ना? कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, बस उसी का एक्सटेंशन है. ठीक है ना? जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने ही एकॉस्टिक मोड होंगे, इतना आप समझ जाना. सॉरी, मतलब जो भी डायमेंशन होगा, यू कैन से जैसा भी डायमेंशन होगा, इफ इट इज 1 डायमेंशन देयर विल बी 1 एकॉस्टिक मोड, 2 डायमेंशन 2 एकॉस्टिक मोड, 3 डायमेंशन 3 एकॉस्टिक मोड. ठीक है ना? एकॉस्टिक मोड डजंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, बट ऑप्टिकल मोड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एटम इन अ प्रिमिटिव यूनिट सेल. क्लियर एवरीवन? लेट्स टॉक अबाउट द दिस फॉरवर्ड. ये कैसे चला गया? ये कहां चला गया? इसको तो मैंने कुछ किया भी नहीं था. चलो कोई बात नहीं. लेट्स टॉक अबाउट अवर लास्ट एंड फाइनल दिस फॉरबिडन गैप. इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी. हाँ, सॉरी 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 प्लीज से अगेन. आई एम सेइंग, देखो जो लिखा है वही मैंने बोला है. इफ देयर आर एन एटम पर यूनिट प्रिमिटिव सेल. एक क्वेश्चन है, देयर इज अ क्वेश्चन नेट जेआरएफ 2018 का, मैं उसको कराऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. एक एटम है, परवोसाइट स्ट्रक्चर था बेरियम टाइटेनेट का, उस पर क्वेश्चन आया है कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच इन दैट स्ट्रक्चर, मतलब बेसिकली इन दैट यूनिट सेल. उसको मैं कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा. फॉर द टाइम बीइंग जस्ट स्टडी, मीन जस्ट अंडरस्टैंड दिस. इफ देयर आर एन एटम पर यूनिट प्रिमिटिव सेल, ठीक है ना? वो क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी. इफ देयर आर एन एटम पर यूनिट प्रिमिटिव सेल, देन देयर विल बी 1D दिस, 2D दिस एंड 3D दिस. वो क्वेश्चन आज ही करके जाएंगे, ठीक है ना? वो क्वेश्चन आज ही करके जाएंगे, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉरबिडन गैप. ये सबने नोट कर लिया? एवरीवन हैव नोटेड डाउन? all right, so let's start with the our last section, that is forbidden gap. Third section is analysis of forbidden gap. First, tell the frequency range of this forbidden gap. The frequency range is 2 beta by capital M in under root omega under root 2 beta by small m. This is our frequency range for the forbidden gap. In this range, ये जो range है आपकी under root 2 beta by capital M to under root 2 beta by small m, इस frequency range में किसी भी तरीके का वाइब्रेशन या डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा. ये कॉन्सेप्ट कैसे आया है फॉरबिडन गैप का? यही बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट लीड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंड थ्योरी. बेसिकली दिस इज अ बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप. ये कैसे इसमें कन्वर्ट होगा मैं बैंड थ्योरी में आपको बताऊंगा, ठीक है ना? बस फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज. दिस फ्रीक्वेंसी रेंज मीन्स अंडर रूट 2 बीटा बाई कैपिटल M टू 2 बीटा बाई स्मॉल m. इस फ्रीक्वेंसी रेंज में एकोस्टिक हो या फिर ऑप्टिकल हो, किसी भी तरीके का फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं आएगा. दैट मीन देयर विल बी नो वाइब्रेशन. आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप इस फ्रीक्वेंसी रेंज की कोई भी फ्रीक्वेंसी देते हो एटम्स को तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? सो दिस इज अवर फॉरबिडन गैप. एंड दिस अगेन किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है व्हाई, then I can give this answer in the chapter of band theory. Why का आंसर जो है ना वो band theory में मिलेगा. In the lattice vibration you have to understand that
this is the basic the frequency range for the forbidden gap. Okay, so this is our frequency range for the forbidden gap. Now just see one more thing. If I start to see, if I write here omega minus maximum, omega minus maximum is given as under root 2 beta by capital M. See guys, ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉरबिडन गैप का ये जो डिस्कशन चल रहा है भी इंपॉर्टेंट देखना. इफ आई इंक्रीज कैपिटल एम, अगर मैं कैपिटल एम को और बढ़ा दूं, लेट सपोज वाज 20 ग्राम और मैंने दे दिया 30 ग्राम कर दिया, व्हाट विल हैपन? ओमेगा माइनस मैक्स विल शिफ्ट डाउनवर्ड. क्या नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा? भाई अग्री हो सब लोग? When we increase the mass, this omega minus maximum will shift downward. जैसे कि ये यहां पर है, मैंने इसके मास को और बढ़ा दिया, कैपिटल एम को और बढ़ा दिया, we have increased the capital M, then this portion, this line will shift it downward. ये नीचे आता चला जाएगा, obviously. Okay, that is omega minus maximum, it will be shifted downwards. Shifted downwards, right? Now just see this omega plus minimum. Omega plus minimum is under root 2 beta by small m. As we decrease the mass, हमने small m को क्या किया? और ज्यादा कम कर दिया. It was let's suppose 0.1 gram, हमने और कम कर दिया. What will happen? As the m will goes down, the omega plus minimum will goes up. That means this omega plus minimum will shifted upward. ये ऊपर ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा. Clear है? It will shifted upward. Omega plus minimum क्या होगा? ये shifted upward. ठीक है? Now what are the conclusion? The conclusion is the more are the ratio of the two एटम मासेस. दो एटम के मास का रेशियो जितना ज्यादा होगा, द गैप विल बी मोर, उतना ही ज्यादा फॉरबिडन गैप होगा. भाई यहां से तो यही क्लियर है ना? देखो जैसे जैसे मास ज्यादा था, वी हैव टेकन द कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम. एज वी इंक्रीजिंग द कैपिटल एम बड़ा था और बढ़ाते गए, ये वाली रेंज ऊपर शिफ्ट होती चली गई. स्मॉल एम वाज स्मॉलर, हम इसको और छोटा करते चले गए, ये रेंज नीचे डाउन होती चली गई. और ये ऊपर हो रहा है, ये नीचे हो रहा है, तो ऑब्वियसली फॉरबिडन गैप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. फॉरबिडन गैप इंक्रीज कर रहा है. ऑल राइट, सो यू कैन राइट वन लाइन हियर दैट द मोर आर द रेशियो of two masses, the more will be the forbidden gap. The more will be forbidden gap. जितना ज्यादा मास का रेशियो उतना ही ज्यादा गैप. अब इसका उल्टा सोचना शुरू करो. Just think reverse of it. As we go towards the point where two masses are getting comparable means दोनों एटम के मास को हम क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं, धीरे धीरे पास ला रहे हैं. मीन्स कोई अगर 4 ग्राम था तो दूसरा वाला 1 ग्राम था, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ? 1 ग्राम को 2 ग्राम, 3 ग्राम, 3.5, 3.7 ऐसे करके 4 के पास ला रहा हूं. क्या होगा उससे? कैन एनीवन टेल? गैप विल बिकम नैरोअर, गैप धीमे धीमे पतली होती चली जाएगी. एंड एट अ पॉइंट वेयर द स्मॉल m is equal to capital M, the point where small m is equal to capital M, ये दोनों जहां बराबर हो जाएंगे वहां पर गैप कहां हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा. At this point capital M is equal to small m, this point
the forbidden gap will be vanishes. Forbidden gap will be vanishes. यहां पर forbidden gap क्या होगा? खत्म हो जाएगा. खत्म हो जाएगा means what? The omega, the means you can say maxima of omega minus. Maxima of omega minus will coincide with minima of omega plus, right? At this point means at this point where capital M is equal to small m, the maxima of this omega minimum will coincide with minima of omega plus, right? और इस पॉइंट पे क्या होगा? गैप खत्म हो जाएगा. गैप, देयर विल बी नो गैप. फॉरबिडन गैप खत्म हो जाएगा. और आप देख भी सकते हो, हमने एक रिलेशन, वी हैव डिराइव अ रिलेशन हियर, दैट इज a upon b is equals to capital M upon small m. यही किया था. when m is equal to m then a is equal to b. दोनों ही masses का amplitude सेम हो गया. The amplitude of both the masses are the same. What it suggests? Yes. Actually, your voice is not clear. क्या आप कह रहे हो आप? आपके उधर वीडियो स्टक हो गया है तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना. यही आप पूछ रहे हो? ये आपका कोई डाउट है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. एक्चुअली आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है. ठीक है ना. देखो, आप वीडियो एक बार फिर से देख लेना. कहीं भी किसी को भी डाउट होगा मुझे मैसेज कर देना. आई विल रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप. ओके. सो वेयर आई वाज, यस, when both the amplitude will be same, that means the atoms are of the same mass. भाई अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है मतलब दोनों ही एटम कितने हैं? सेम मास के हैं. ठीक है ना. क्लियर है. सो when the small m is equal to capital M, the gap will be vanishes. and इसको भी स्टार कर लो, इसको भी स्टार कर लो इस पॉइंट पे. and one more question, at what value of k, at what value of k the forbidden gap is arise, and the second question, at what value of k the forbidden gap vanishes. किस पर हो रहा है? ठीक है ना. k is equals to pi by 2a. okay, basically they are vanishes the k is equals to बिल्वन जोन बाउंड्री पे ये हो रहा है. ठीक है. सो दिस was the complete explanation of this graph. ये ग्राफ ही है इस पूरे चैप्टर का क्रक्स, दिस ग्राफ. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ. ठीक है ना. वो अपने हिसाब से मैंने बेस्ट देके आपको हर एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है यू गाइज आर एबल टू सॉल्व दैट. ठीक है ना. द रिमेनिंग थिंग विच, अब जिसमें कुछ बचा नहीं इस चैप्टर में, दिस इज सम कॉन्सेप्ट ऑफ फोनॉन्स. फोनॉन्स की अभी हमने ज्यादा बात नहीं की है. ओके. सो द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डेडिकेट टू द फोनॉन्स एंड समथिंग अबाउट द 2D एंड 3D. द एक्सटेंशन देखेंगे, एक्सटेंशन कैसे होता है, राइट. तो उसमें करके देन बेसिकली इन द नेक्स्ट क्लास द चैप्टर विल बी फिनिश एंड वी विल सॉल्व द ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है ना. आप इसका रिवीजन करना अच्छे से, जो भी आज पढ़ाया गया है आप इसका रिवीजन करना, इस ग्राफ को अच्छे से समझने की कोशिश करना, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना. ठीक है ना. कोई डाउट होता है, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन सेंड मी. ऑलराइट. यस. वैनिश भी उसी पे होगा. वैनिश भी पाई बाय 2a पे ही होगा ना. जीरो पे नहीं, जीरो पे नहीं होगा, पाई बाय 2a पर ही होगा. अरे भाई वैनिश देखो, वैनिश का मतलब क्या है देखो मैं बता रहा हूं. इसमें k इक्वल टू 0 का क्या रोल है बताओ. ये रहा अभी का सिचुएशन. ठीक है ना. ये रहा अभी का सिचुएशन. ये बढ़ते 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 चला गया. एक्सटेंशन इसका k इक्वल टू 0 पे हो जाएगा, वो भी इनफाइनाइट केस में. उसमें हमें नहीं जाना है. ठीक है ना. कोलैप्स कहां पे हो रहा है? कोलैप्स कहां पे हो रहा है? कोलैप्स ऐसे ऐसे कैसे ऐसे करके देखो वापस यहां पर आ गए.
अब ये और हो रहा है और नीचे आ रहा है, तो ये लाइन तो सेम है ना, ये लाइन तो दोनों सेम है ना, k इज टू पाई बाई 2 है, कोलैप्स हो गया. सो बेसिकली इट विल कोलैप्स एट द बिल्वन जोन बाउंड्री ऑफ बिल्वन जोन. ठीक है. और इसी पे बैंड थ्योरी का क्वेश्चन आया था इसी बार, नेट में था या गेट में था, बैंड थ्योरी की वो कहाँ पर मतलब गैप कहाँ पर कोलैप्स करेगा ऐसे करके था, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं ध्यान है, बट द आंसर वाज द बिल्वन जोन बाउंड्री ऑफ द बिल्वन जोन. ठीक है, ठीक है, क्लियर. Okay, guys, see you in the next class. Okay, just revise it, and if there is any doubt, please send me. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.